Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to study chapter hydrogen. As you all know, hydrogen is the first element in the periodic table. Electronic configuration 1s1. Hydrogen resembles two groups in the periodic table, that is alkali metals and halogens, group 1 and group 17. Alkali metals has outer electronic configuration ns1 and alkali metals की outer electronic configuration totally resembles with the hydrogen's electronic configuration. Halogens has the outer electronic configuration ns2 np5, and like halogens, hydrogen is short by one electron to the noble gas configuration, that is of helium 1s2. So halogens also is outer electronic configuration short by one electron, and hydrogen की भी electronic configuration that is short by one electron to attain stable electronic configuration. Hydrogen form unipositive ion like that of alkali metals by losing one electron, and hydrogen form uninegative ion like of halogens by gaining one electron. जैसे कि lithium after losing one electron it converts into lithium unipositive ion, and hydrogen also, and chlorine by gaining one electron it is converted into uninegative ion. Hydrogen also converted into hydride ion. Like alkali metals, hydrogen form oxides, halides, sulfides. Like halogens, it forms diatomic molecule and hydrides and covalent compounds. Ionization enthalpy की बात करें, so hydrogen resembles more with halogens because halogens also has high ionization enthalpy and hydrogen also has high ionization enthalpy. alkali metals की ionization enthalpy low होती है. Reactivity की बात करें, so hydrogen is very low reactive as compared to halogens. Halogens के कंपैरिजन में रिएक्टिविटी की बात करें तो लो होती है हाइड्रोजन की. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम वी विल गेट H पॉजिटिव. सो इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, सो H पॉजिटिव डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली. So it has the unique behavior in itself. Hydrogen has the unique behavior, hence best placed separately in the periodic table. So best placed separately अगर रखें हम हाइड्रोजन को, that will be the good. आइसोटोप्स की बात करें हाइड्रोजन के, जो तीन होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, 1H1, 1H2, 1H3. सो प्रीडोमिनेंट जो है दैट विल बी प्रोटियम, दैट इज़ 1H1. ड्यूटेरियम को हैवी आइसोटोप भी कहते हैं एंड सिंबल डी हो जाएगा, ट्रीटियम का टी हो जाएगा सिंबल. सो आउट ऑफ दिस थ्री, ट्रीटियम इज़ द रेडियो एक्टिव वन एंड इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स. हाफ लाइफ होती है 12.33 ईयर्स. नाउ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. सो NCERT में दो दिए हुए हैं, laboratory preparation and commercial production of dihydrogen. First one is laboratory preparation. So first step laboratory preparation में granulated zinc plus dilute HCl. So granulated zinc का रिएक्शन करवाते हैं हम dilute HCl के साथ, तो हमें डाईहाइड्रोजन मिल जाता है. एंड सेकेंड वन इज जिंक प्लस एक्वस एल्कली. जिंक को एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सो हमें डाईहाइड्रोजन मिलेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. नेक्स्ट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन. सो फर्स्टली हम कैसे बना सकते हैं कमर्शियली डाईहाइड्रोजन को, इलेक्ट्रोलाइसिस करके एसिडिफाइड वाटर का, जिसमें इलेक्ट्रोड्स यूज़ होती हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स. सो इसका एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं हम. सेकेंड कैसे हम बना सकते हैं, सेकेंड प्रोसेस जो है दैट इज़ हाई प्योरिटी डाईहाइड्रोजन अगर हमें चाहिए, मोर देन 99.95% प्योर. सो दैट वी विल ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड इलेक्ट्रोड्स दैट वी विल यूज इज निकल इलेक्ट्रोड्स. सो हाई प्योरिटी वाली मिलेगी हमें वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइज करके निकल इलेक्ट्रोड्स के प्रेजेंस में. थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. सो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन. ओके, हाइड्रोजन हमें इस प्रोसेस से मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट एट कैथोड. कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है हमें एज अ बाई प्रोडक्ट बाई इलेक्ट्रोलाइजिंग ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन. फोर्थ प्रोसेस है बाई रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन और कोक विद स्टीम. स्टीम का रिएक्शन करवा दें अगर हम हाइड्रोकार्बन और कोक के साथ हाई टेम्परेचर पे
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, लाइक मीथेन एंड H2O, 1270 Kelvin temperature, that is a high temperature, and catalyst is nickel, so we will get CO plus H2, and this mixture is known as water gas. This is synthesis gas या syn gas भी कहते हैं, because it is used in the synthesis of many compounds like methanol, this mixture. What is coal gasification? So production of syngas, this CO plus H2, प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस फ्रॉम कोल. यहाँ पे हमने मीथेन लिया था हाइड्रोकार्बन, अब हम कोल लेंगे अगर हम, एंड स्टीम एंड सेम टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, सो वी विल गेट दिस सिनगैस फ्रॉम कोल, इसलिए इसे कोल गैसिफिकेशन कहा गया इस प्रोसेस को. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज़ इंक्रीज्ड बाय दिस रिएक्शन. इससे हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से. CO ऑफ सिनगैस मिक्सचर इज़ रिएक्टेड विद स्टीम FeCrO4 एज कैटलिस्ट. सो सिनगैस मिक्सचर जो है CO plus H2, उसका कार्बन मोनोक्साइड हम ले लेंगे, दैट विल, और उसे हम रिएक्ट करवा देंगे स्टीम के साथ. कैटलिस्ट होगा FeCr आयरन क्रोमेट, CO plus H2O 673 Kelvin, FeCrO4 एंड CO2 एंड H2 डाइहाइड्रोजन मिल गया. सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन.